Dear students and my fellow viewers, I welcome you all and I hope you all will be fine. In today's lecture, I am going to discuss with you about the resistances that are connected in parallel, or in other words, I can say the combination of resistances in parallel. In the previous lecture, I have already discussed the resistances combined in series, or we can say series combination of the resistances. In the series combination of the resistances, I have already discussed with you that the resultant resistance, or we can say the effective resistance in the series combination, this or effective, it is equal to sum of the individual resistance of the resistors. That means or effect is equal to R1 plus R2 plus R3. These were the three resistances that were connected in series. Now, in today's lecture, we will discuss about the resistances that are connected in parallel. Dear students, in this case, I have taken the three resistances like R1, R2 and R3. These three resistances R1, R2 and R3, they are connected in parallel as it is obvious from this very circuit diagram. Dear students, these three resistances R1, R2, they are connected, we can say they are connected in parallel across the 2 points A and B. Suppose this is point A and point B. Dear, so to get the complete circuit, we connect these three resistances with the voltmeter, which is also connected in parallel, and this whole circuit, or we can say, is completed by the help of battery and switch. Dear students, यहाँ पर आपको ये याद रखना है, जब हमने इसको बैटरी के साथ भी कनेक्ट किया, स्विच भी यहाँ पे लगाई, एज सुन एज अ स्विच इज ऑन, जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, द करंट विल फ्लो। ये जो करंट जाएगा इसमें, तीन रेजिस्टेंस में जो करंट जाएगा, सपोज करंट आई यहाँ से फ्लो होना शुरू करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल से, ये जो करंट इसमें जाएगा, दिस करंट हियर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और वी कैन से resistance R1 will get the current I1, and resistance R2 will get the current I2, and resistance R3 will get the current I3. Here the potential difference is same, as this voltmeter is connected, we can say, in parallel to this very combination of the resistors. So we can say that in this very combination, when the resistances are connected in parallel, the potential difference or voltage in all the three resistors, जो यहाँ पर ये तीन है, it is the same. यानी यहाँ पर जो potential difference है ये same रहेगा, ठीक है, क्योंकि this potential difference we can say, ये जो हमने वोल्टमीटर कनेक्ट किया है, इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी ये पैरेलल के साथ, जैसे पैरेलल में रेजिस्टर्स हैं वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी इन पैरेलल ही है। यहाँ पर हम कहेंगे वोल्टमीटर भी यहाँ पे कनेक्टेड है पैरेलल, सो पोटेंशियल डिफरेंस इन दीज रेजिस्टेंसेज विल बी द सेम, आपको याद रखना है। लेकिन क्या इसमें क्या है, द टोटल करंट इन ऑल द थ्री रेजिस्टर्स, यहाँ पे करंट का मामला आ गया, ये जो करंट इसमें जा रहा है, द टोटल करंट इन ऑल द थ्री रेजिस्टर्स इज द सम ऑफ द करंट इन ईच रेजिस्टेंस, यानी टोटल करंट जो इस सर्किट में जा रहा है, इन रेजिस्टर्स में जा रहा है, वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द करंट दैट्स पासिंग इन ईच रेजिस्टेंस और ईच रेजिस्टर। सो हियर वी कैन से टोटल करंट आई इज इक्वल टू I1 plus I2 plus I3. So you got it here. Current, total current I, it will be equal to the sum of the individual currents, or sum of the individual current passing through each resistance or each resistor. So I is equal to I1 plus I2 plus I3. Now dear students, according to Ohm's law, ओम्स लॉ हमें क्या कहता है, ओम्स लॉ हमें सिंपली कहता है V इक्वल टू आई आर, यहाँ पर हम I का वैल्यू निकालेंगे, I इक्वल टू V बाई आर, ये यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आई हैव ऑलरेडी गिवन ए कंप्लीट लेक्चर ऑन ओम्स लॉ, वहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। सो हियर वी गेट V इक्वल टू आई आर और I इक्वल टू V बाई आर। नाउ I1, तो I1 हमें किसके बराबर निकलेगा, V बाई R1, सिमिलरली I2 V बाई R2, सिमिलरली I3 V बाई I3, V बाई R3, ये आपको याद रखना है। यानी ये जो यहाँ पर हमें I1, I2, I3, इनका वैल्यू हमें किसके बराबर निकला है, V बाई R1, इसी तरह I2 का V बाई R2, I3 का V बाई R3, ठीक है। Now dear students, as I have already said that the total current will be equal to I1 plus I2 plus I3, यहाँ पर मैंने ये लिखा, we know that total current I is equal to I1 plus I2 plus I3। अब हम क्या करेंगे, सबस्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ आई, हम इनका वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे, इस आई का भी, इस I1 का, I2 का, I3 का। जब हम इस आई का वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, दिस आई, इसके बदले मैंने यहाँ पर लिखा V बाई आर, यानी ये जो आई है ये किसके बराबर है, V बाई आर, जैसे कि मैंने ऊपर दिखाया। तो दैट्स इक्वल टू, ये है I1, सो V बाई R1 प्लस I2 V बाई R2 प्लस V बाई R3, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे,
वी बाई आर को ऐसे ही रखेंगे, यहाँ से इस वी को कॉमन निकालेंगे, यानी वी बाई आर वन, इनसे वी को कॉमन, तो हमें क्या मिलेगा अंदर से, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। ये वाला वी जो राइट साइड ऑफ द इक्वेशन है और लेफ्ट साइड ये कैंसिल हो जाएंगे। सो हियर वी विल गेट वन बाई आर इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। डियर स्टूडेंट, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन वी नीड, यानी ये वो एक्सप्रेशन है जो हमें चाहिए। सो हम ये कह सकते हैं, दस वी कंक्लूड दैट uh, reciprocal of the total effective resistance of the several resistors that are connected in parallel is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistances। तो हम ये कह सकते हैं ये जो reciprocal of the total resistance होता है या effective resistance का जो reciprocal होता है वो किसके बराबर होता है, that's equal to sum of the reciprocals of the individual resistors। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको सिंपली याद रखना है, और इफेक्टिव या टोटल सेंस इक्वल आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें क्या मिल रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस वन बाई आर इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इसी तरह जितने भी रेजिस्टर्स हमारे पास होंगे उतना एक्सप्रेशन हमारा बड़ा निकलेगा। ठीक है, सो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आपको ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स थी, हाँ, तो हियर वी गेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंसेस। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। So this is now clear to you. Now dear students, there are some disadvantages of series connection in electric circuit। जब हम electric circuits को series combination में हम electric circuit बनाते हैं series combination का, उसके कुछ disadvantages हैं। जैसे पहला disadvantage हम यहाँ पर डिस्कस करें, in series connection if any of the component fail to work the circuit will break and the none of the component, यानी जो भी इसके साथ कनेक्ट होगा that will not work। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमें क्या है कि हर एक जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम एक रेजिस्टर को दूसरे के साथ तीसरे के साथ इसी तरह, तो उसमें जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कोई भी कंपोनेंट फेल होता है तो पूरा सर्किट ही ख़राब हो जाता है। जैसे टीवी अगर हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन पे लगाएंगे, बल्ब लगाएंगे, फ़ैन लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, अगर एक भी चीज़ में फॉल्ट आ गया तो उस पूरा का पूरा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, सो इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन इफ़ वन ऑफ द कंपोनेंट फेल टू वर्क वी कैन से द सिस्टम और द सर्किट ब्रेक्स। ये होगी पहली बात। दूसरी बात, it is not possible to connect a bulb and a heater in series because they need different values of current to operate properly। ये भी आपको समझ में यहाँ पर आ गया कि जब हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में बल्ब को भी और हीटर को भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है उनको ऑपरेट करना, क्योंकि बल्ब को अलग हम कहेंगे वैल्यू ऑफ करंट चाहिए और जो हीटर है उसको अलग वैल्यू ऑफ करंट चाहिए। So this is not possible to operate heater and bulb in series combination because both need different types of different values of current to operate properly। So these are some of the disadvantages of the series circuit, or we can say series connection in the electric circuit। So here you also got about this very topic। So I hope you got the whole lecture nicely। Inshallah in the next lecture I am going to meet with some another topic of this very chapter। Till then, Allah Hafiz।